What was that problem? This we have done. 14 also we have done ना? 14 कर लिया था? ट्रेन प्रॉब्लम कहाँ पे था फिर? Question 11. Let's answer question 11. Two trains of unequal length have speeds of 60 and 50 km per hour. When they travel in opposite directions in straight line tracks, they take 9 seconds to completely cross each other. So let's take one length train to be L1 length, another of say L2 length. So lengths are different. The question says, this is 2023 UC question, ठीक है? Shija, this question must be there in your booklet 2023. And the speeds are given in kilometer per hour. They're traveling in the opposite direction. This is 60 kilometer per hour. And this train has speed V2, which is 50 kilometer per hour. So the speeds are given to us. So when they cross each other in the opposite direction, the time is also been given. Time is how much? 9 seconds. So you know that in the opposite directions, speeds are added. है ना? तो क्या इक्वेशन बनेगा? 9 is equal to L1 plus L2 because we don't know L1, L2. And the speeds will be added 60 plus 50. But the problem is it is in kilometer per hour. So I convert this into meter per second. So why to convert into meter per second individually? We rather convert in one go. So I'm adding 60 and 50 and converting this into kilometer per hour. Okay. देखो यहाँ से L1 plus L2 फाइंड करो कितना आ रहा है. So we get L1 plus L2, 9 into 5 by 18 into 110 equal to L1 plus L2. So 9 2 is this and 2 5 5. So L1 plus L2 कितना आ गया? 5 into 55. वो कितना हो गया? 275. So this is our equation number 1. So दोनों की ट्रेन के लेंथ का सम is 275. Next is when they travel in the same direction, a person in the faster train sees the slower train for 18 seconds. Okay? So this is the faster train. So person in the faster train is observing the slower train. L2 I've taken the slower train. So man in the faster train sees the person in the slower train. And how much time it takes? It takes 18 seconds. So what should be the formula now? Person in the faster train watches the slower train for 18 seconds. So this time the length covered will be of L2.
Length covered would be L2 because L2 is slower train. तो 275 है, 225 फिफ्थ, नहीं L1 प्लस L2 275 आ रहा है ना। अब पर्सन द फास्टर ट्रेन, मतलब लेंथ L1 में बैठा हुआ है वो, स्लो ट्रेन को वो देखता हुआ जा रहा है, तो स्लो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी दोनों की, सब्ट्रैक्ट होगी बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन। तो 60 - 50 एंड टाइम टेकन कितना है 18, एंड इनटू इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंस स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन, शीजा लिख रही हो तुम क्वेश्चन, आन्या, इन द सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 × 10 × 5/18 इज इक्वल टू L2। 18 कट गया, L2 की वैल्यू आ गई 50। So now we can find L1. L1 would be how much? 275 minus 50, that is 225 meter. So now we get the length of the faster train is 225. अब next part में क्या रहा, for how much time in second would a person in the slow train, now this time the person is in slow train, वो वॉच कर रहा है फास्टर ट्रेन को, इस बार फास्टर ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, एंड दे आर आस्किंग द टाइम, द टाइम विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, अगेन इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड वुड बी सब्ट्रैक्टेड, 60 - 50, कन्वर्ट करो 5/18 से मीटर पर सेकेंड में, तो t इज इक्वल टू L1 कितना है 225, दिस इज 10 × 5 × 18, 45, 81 सेकेंड्स। आंसर क्या है इसका? हम्म वही है फिर। So the answer is 81 seconds. The same direction we subtract. The slight difference was that when the person is in train A, he'll take the length of the other train. जिस ट्रेन में पर्सन बैठा हुआ है उसके दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ ली जाएगी। ओके, और हमने वहीं पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट वी डोंट कन्वर्ट इंडिविजुअली। एड एंड हियर ओनली यू सब मल्टीप्लाई, subtract here only multiply 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा था, वी हैव डन, इसके बाद कौन कौन से कर लिए थे हमने, ये वॉल्यूम वाला कर लिया था ना, स्टार वाला किया था, नहीं किया अभी, देखो सीधा नोट्स। हो जाएगा, सब कर लेंगे ना, मैं हूं ना। 14 कर लिया, 14 कर लो, कर लेते हैं। सोचना ही नहीं है तुम्हें, उल्टा सोचो, हर क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, जो नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं हुआ वो किसी से भी नहीं हुआ। हम्म ये ऐसा सोचो ना, तभी तो पॉजिटिविटी लाओ लाइफ में। दिस क्वेश्चन नाउ, इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर तुम्हें हार्डकोर मैथ्स करना है तो बेसिकली यू नीड टू कन्वर्ट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को तुम उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, कंप्यूटर में पढ़ा होगा तुमने, बाइनरी को डेसिमल में करते हो, एक तो वो तरीका है, उसको छोड़ो फिर, जस्ट फॉरगेट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लो कि तुम 6th क्लास में हो, जैसे बचपन में पढ़ा था ना, एप्पल दिखाया ए फॉर एप्पल, वैसे वैसे मैच कर लेते हैं। जैसे ये नंबर 8 है, इसमें स्टिक्स दे रखी हैं तुम्हें, और तुम स्टिक्स को देख के तुम यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी पोजीशन में स्टिक का क्या नंबर आ रहा है। हम्म वैसे लॉजिक लगा के ट्राई करो, 1 2 3 4th पोजीशन में जो स्टिक है उसका वी आर गेटिंग द सम एज नंबर इज 8, उसको 8 मान लेते हैं। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इसमें 10 आ रहा है टोटल, तो ये 8 हो सकता है, फिर ये रिमेनिंग 2 हो जाएगा। तो इफ आई टेक दिस एज 8, ये वाला स्टिक, लॉजिक हम लगाते हैं इसमें, इलॉजिकल लॉजिक जो हो सकता है।
सो आई टेक दिस एज 8। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो 8 + 2 10 हो गया, अगर ये लॉजिक वर्क करता है तो। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? दिस इज 8, दिस इज 2, 11 था, 8 + 2 1 हो गया। तो फर्स्ट टिक की वैल्यू 1 आ गई। फिर इसका वैल्यू कितना था? 8। इसका 1 आ चुका है, 13 आ रहा है। ये तो 8 + 9 होता है, दिस इज 13। 13 - 9 इज, ये 4 आ गया, इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब व्हाट अबाउट दिस? इसकी वैल्यू 8 है, इसकी कितनी आ गई? आ चुकी है ना, 4। इसकी आ चुकी है नहीं, 8 + 4 12, लेकिन टोटल 14 दे रखा है, तो शुड बी 2। तो दिस शुड बी 2। तो नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ ऑल द स्टिक्स ऑलमोस्ट, है ना? इसकी नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो दिस इज नाउ, दिस इज कितना था? 1। ये 17, तो ये कितना बचा? 16। मतलब ये 8 था, ये 1 था। हाँ, मतलब उनको ऐड कर रहे हैं वो वाला फंडा नहीं, मैथ्स हार्डकोर मैथ्स नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल लेमैन्स की से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। वही तो है वो बाइनरी, वो करना ही नहीं हमें। वो एक दिन में बाइनरी टू उसमें उसमें कब बता दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। हाँ विल, हाँ वो बाइनरी है, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ही बिना उसके भी हो सकता है। अब देखो, इस वाली स्टिक का नंबर कितना है? 16। और थर्ड वाली का कितना था? 4। तो कितना आना चाहिए था आंसर? 4 + 16 20। क्या आंसर है? तो जब बिना लॉजिक के आंसर आ रहा है तो लॉजिक क्यों लगाना है, दिमाग क्यों इस्तेमाल करना है? हाँ वो हम कर लेंगे एक दिन में। मैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी समझा दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो भी बनाना है, वो बहुत पेंडिंग है, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, टाइम निकालूंगा 2-3 घंटे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो चुका है ना? अच्छा ये वाला करो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तो बहुत आते हैं। दिस इज, पिछले वाला हो गया ना, रिदम आना, आन्या समझ में आ गया था? ठीक है। यस सर। राइट, shown below are 4 sides of a rectangular dice. If 3 such dice are shown together, what is the probability of getting a total sum of 4? हम्म, आउटकम तो 6 ही होंगे, लेकिन वो उसमें तो जीरो, उसको जीरो कंसिडर कर लें, ब्लैंक है वो तो। अब ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन हाँ, तो मतलब उस तरह वो फॉल ही नहीं करेगा या तो, मतलब हमें इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ इसको हम जीरो मान लेंगे, दिस वुड बी जीरो, ये 1 हो गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और 3 ऐसे डाइस तुम थ्रो कर रहे हो, और सम हमें चाहिए 4, तो तुम पहले ये देख लो कि सम 4 कितने वेज से तुम्हारा आ सकता है। इन हाउ मेनी वेज यू गेट सम इक्वल टू 4? सारे ऑप्शन बना लो। हो सकता है पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आए, और तीसरे में 2 आ जाए। 1 1 2। लेकिन ये भी तो हो सकता है, इट इज 2 1 1। या ये भी तो हो सकता है 1 2 1। 3 केसेस बन गए इसके। तो इस तरह से यू मेक ऑल द केसेस। नहीं वो तो अलग है ना, मैं तो अभी सिर्फ 1 1 और 2 लेके बनाया है। अरे वो तो है ही, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज, सिर्फ डिजिट्स 1 एंड 2 लेके मैंने केसेस बनाए अभी। अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी 3 and 1। तो 0 1 3, 1 0 3, एंड, और क्या हो सकता है? इसके सारे काफी बनेंगे ना। 0 3 1 1 3 0
301 310। तीनों तीनों डिजिट्स अलग अलग है ना, तो 3 फैक्टोरियल 6 बन जाएंगे इसके। तो 301 के इतने केसेस बन रहे हैं। और कौन सा हो सकता है? 220 भी हो सकता है। इट कुड बी 220 ऑल्सो। सो 220, 202 एंड 022। हम्म। एक डाइस में 4 फेसेस हैं, तो एक डाइस के आउटकम में 4, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, तो टोटल आउटकम 4 क्यूब आ गया। एक डाइस को जब थ्रो करोगे तो 4 आउटकम्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वुड बी 4 क्यूब। हाँ, हमारे भी 12 ही आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे 12। तो 12 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो आंसर वुड बी, आंसर चेक करो क्या आ रहा है। पॉइंट, हाँ वही ना, टू प्लेस और डेसिमल कर लो। 19 के करीब आ रहा है मेरे ख्याल से। तो 0.2 होगा ना, अगर ये 3.2 अगर होता तो 0.2 हो जाता। चेक द आंसर। शीजा तुम कर रही हो? कुछ लिखा तुमने? Yes. 0.18 है, ठीक है, 189 होगा। हाँ, रेंज होगा, 0.18 टू 0.19 तक होगा। एक मिनट। ये अपना नहीं है, दिस नॉट। 18 बता रही हो तुम? नहीं नहीं, इक्वल सेकेंड में फ्लिप्ड ऑन इट्स, हाँ, इट इज मैथ्स। हाँ, ये मैथ्स है। ये बच्चों का खेल वाला है थोड़ा सा। सोचो पहले क्या करना है, एक बार रीड द क्वेश्चन, फिर करते हैं इसको भी। पिरामिड, यू नो टेट्राहेड्रन है ये बेसिकली। कितने फेसेस हैं टेट्राहेड्रन में? तो बहुत, 5। हाँ हाँ, 4 होते हैं, राइट। और उसको तुम सिर्फ साइड में फ्लिप कर सकते हो। तो गिरा गिरा के फ्लिप करोगे, जैसे कि अगर मैं इसको बना के तुम्हें दिखाऊं, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, जिगजैग ऐसे ही चलेगा। तो जैसे कि ये है, इसको अगर मैंने फ्लिप किया अभी, ठीक है, ऑलरेडी इसने तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, इसकी पोजीशन यहाँ दे रखी है, विच इज हाउ मच यू कैन फाइंड। तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल, ये बेसिकली ट्रायंगल है ना, इक्विलर ट्रायंगल। दिस वी हैव डन मेनी टाइम्स। ट्रायंगल, इसका साइड कितना दे रखा है? 30, एंड दिस इज द हाइट। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 30 a, व्हाट इज द हाइट? ये याद कर लेना बिल्कुल, √3a/2। तो जब तुमने एक बार फ्लिप किया, तो इट हैज ऑलरेडी कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस? 3a/√3a/2। दिस यू कैन कैलकुलेट। वही इस हाइट पे जाना है ना, तो सीधा जाना है तुम्हें। तो हम तो ये कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना बार तुम्हें फ्लिप करना पड़ा, डिस्टेंस नहीं। एक बार तुम इस साइड के बाद फ्लिप कर सकते हो या इस साइड के बाद फ्लिप कर सकते हो। सपोज मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया इसको, तो ऐसे फ्लिप करने पे ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब दो फ्लिप में बेसिकली इस ट्रैवलिंग ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1.73 30/2। इफेक्टिवली इतना ट्रैवल कर रहा है वो। तो 1.73 इंटू 15, ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है एक बार। दो, हाँ हाँ, तो दो फ्लिप में इतना जा रहा है ना। अगर सपोज वो यहाँ होता,
इमेजिन करो वो यहाँ होता है ये। अरे ये अगर वो यहाँ होता तो एक फ्लिप ये हुआ, दूसरा ये हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो फ्लिप में इफेक्टिवली वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 15 × 10 मच, ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। अब अगर सपोज मैं इसको ऐसे फ्लिप करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे फ्लिप करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली दो फ्लिप में इफेक्टिवली वो अपनी इस √3/2 हाइट के बराबर फ्लिप कर होता है। दो फ्लिप में वो इतना ट्रैवल कर रहा है वो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। अब हम्म अभी सुनो तो सही, तुम जल्दबाजी करके आंसर देख लेती हो पहले ही, फिर वो गलत है फिर दोबारा चेंज करती हो, वो तरीका नहीं है इसको करने का। ये क्लियर हो गया? तो कितना लेंथ उसको ट्रैवल करना था, टोटल डिस्टेंस कितनी देर की थी? 135, 85 था ये। 135। इसमें ऑलरेडी हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, कितना आ रहा है वैल्यू? किसने कैलकुलेट किया है? हम्म 26.9 अप्रोक्स, हाँ 26.9 मान लिया, ठीक है। तो 135 में हम इतना पहले माइनस कर लेते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी इतना आगे था ना ये, इट वॉज ऑलरेडी सो मच ऑफ अहेड। हाँ कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 27 लेके पहले कि उसको माइनस कर लो, 27 ले लिया मैंने, ऑलरेडी इतना वो डिस्टेंस में ट्रैवल कर रखा था, 135 में से 27 माइनस किया, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 11108 आ गया। अब 108 को इस डिस्टेंस से डिवाइड करो, 27 से डिवाइड कर लो, बिकॉज दो फ्लिप में 27 ट्रैवल करता है वो। हाँ इंटू टू कर देंगे, ठीक है। 108 को 27 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ये। हम्म हाँ उसको ऐड करेंगे ना फिर, +1 करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने एक फ्लिप यहाँ पे लिया था। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे ख्याल से, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हाँ तो एग्जैक्टली 4 आ गया, तो ये 4 आ रहा है ना? तो 4 × 8 +1 वो, लेकिन मुझे पता लगता है थोड़ी गलती हो रही है यहाँ पे, अगर मैं 26.9 लूंगा तो ये 4 से बड़ा आएगा। इफ आई टेक 27 की 26.9, तो मतलब ये तो एग्जैक्ट 4 आ गया ना, एग्जैक्ट 4 आ गया। तो 4 × 2 मतलब 8 फ्लिप तो ये हो गया, एक फ्लिप ये हो गया 9। बट अगर इफ आई टेक 26.9 इसको तो पॉइंट समथिंग और आएगा वो, तो उसके लिए आई माइट नीड वन मोर एक्स्ट्रा फ्लिप। 10 हाँ तो डेसिमल के साथ बेटर है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4.2 मान लो। तो 4.2 × 2 कर दिया तो 8 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 8 कंप्लीट फ्लिप हो गए, एक फ्लिप ये था, एक फ्लिप एक्स्ट्रा वो हो गया, 10 हो जाना चाहिए आंसर। क्योंकि जब तुम वो यहाँ रीच कर गया, मान लो ये तुम्हारी फिनिशिंग लाइन है, व्हेन इट रीचेस हियर, वो थोड़ा सा 0.1 सेंटीमीटर के लिए मेरे को एक और फ्लिप चाहिए ना, आई नीड टू क्रॉस द लाइन। फिनिशिंग लाइन में पहुंचना है ना मुझे, तो वो डेसिमल जो बचता है ना छोटा सा, वो वही ये चक्कर है। तो दैट्स वाई द आंसर शुड बी 5। नहीं नहीं, 4 से ज्यादा का मतलब है हमने डबल किया ना, 4 × 8 तो वो हो गया, तो थोड़ा सा आ रहा है उसमें, एक सिंगल फ्लिप में हो जाएगा वो, देखो वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक फ्लिप हो गया तो 9, और एक बिगनिंग वाला फ्लिप था ये। आंसर चेक करो। क्या आंसर है? हाँ 2 पॉइंट, इवन वट एवर इज देयर दैट्स, अगर इवन वो 1 मिलीमीटर भी है तो वी हैव टू क्रॉस दैट ना, तो फ्लिप तो लेना ही पड़ेगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो।
सर आप वो वैल्यू वाला पार्ट बता सकते हो, हम वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, वी हाँ आर। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर साइड ए होता है तो ये वर्टिकल हाइट है हमेशा √3i/2 होती है, याद कर लेना, ठीक है, पहला रिजल्ट। तो यस सर। अब जब हम इसको फ्लिप कर रहे थे, तो हो ये रहा था कि ऑलरेडी वो इतनी हाइट पे हमें दे रखा है, इतने डिस्टेंस में ट्रैवल कर रखी है। ये जो डिस्टेंस है ये है √3a/2, है ना, ये वर्टिकल हाइट। यस सर। ये 30 था तो उसको कैलकुलेट करके 26.9 आता, 27 अप्रोक्सीमेट था। 26.9 आ रहा था इस पोजीशन में, उसने 135 में से ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर रखा है, इतना, ये वाला 26.9। तो जब मैं इसको ऐसे फ्लिप करूंगा तो वो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यस। लेकिन अभी भी इफेक्टिवली वहीं है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली वो वहीं उसी पोजीशन पे मेरे को पैरोग्राम बन रहा है, मतलब वर्टिकली वो आगे नहीं जा रहा है। तो दो फ्लिप में सपोज मान लो कि वो यहाँ होता, बिगनिंग में सपोज वो यहाँ होता, हमारे लिए इजी था वो, तो एक फ्लिप में ऐसे करा था इसको, दूसरा ये, दो फ्लिप में 26.9 कर रहा है वो ट्रैवल। बट ऑलरेडी उन्होंने वन फ्लिप दे रखा है हमें, तो 135 में से हमने 26.9 माइनस करना था, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड बाय 26.9 करना था, तो हमें नंबर ऑफ फ्लिप्स मिल जाता। यस सर, वो अप्रोक्सीमेटली पूरा। अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो, ठीक है। यस सर। मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने दिमाग लगा उसको कर लो ना एक बार, जब बिल्कुल सिचुएशन खराब हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तब बताऊंगा मैं। डिड यू ट्राई दोस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ? हाँ, ठीक है, वो बता दूंगा। ऑयल वाला तुम लोगों से नहीं, तुम्हारा फिजिक्स है। वो दिस नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तुम्हें वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, चलो एनीवेज कर लेंगे। तो वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 4.1 का मतलब है × 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दो फ्लिप में वो 26.9 जाता है। ये भी तुमने 26.9 लिया हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8.02 आ गया। तो कहने का मतलब 8 फ्लिप ये हो गए, एक फ्लिप ये यहाँ पे कराया था हमने, और ये जो 0.02 है, तो पॉइंट एक फ्लिप में वो इफेक्टिवली 26.9 कर रहा था। अगर मैं सिंगल फ्लिप की बात करूं, अगर ये उसकी पोजीशन आ जाती है, तो सिंगल फ्लिप में वो कितना करता है, 26.9 करता है। तो 0.02 फ्लिप में कितना करेगा, × 10, तो मतलब वो 5 सेंटीमीटर बच रहा था। तो उसके लिए एक और फ्लिप चाहिए तुम्हें। तो 8 + 1 + 1, आंसर इज 10, 10 था आंसर, ये था। एक में तो वो कॉन्सेप्ट था कि आइस श्रिंक होने पे, वाटर श्रिंक मतलब फ्रीज होने पे वॉल्यूम बढ़ता है। वो एक दिन, वो कल, वो शेप ऑफ द कंटेनर पे आएगा उसका आंसर। वॉल्यूम, वो ठीक है, कर लेंगे एक दिन। ये हमारा, देखता हूँ मैं कौन सा है, ये तो कर लोगे तुम। ठीक है, हाँ ये कर लो। हिंजेस और मैकेनिज्म क्वेश्चंस आते हैं अक्सर।
सर्कल्स रिप्रेजेंट हिंजेस, मतलब ये मूवेबल है। जहां भी सर्कल है ना, दिस इज मूवेबल। ये मूवेबल है सारा। सो वेर एवर यू कम अक्रॉस ए ट्राइंगल, जहां तुम्हें ट्राइंगल नजर आए वो पार्ट मूव नहीं कर सकता, बिकॉज ट्राइंगल में movement will be fixed, because if you have a triangle like this, then this can't be moved. लेकिन if you come across a parallelogram like this, ये हिंज इस तरह का मूवेबल होता है, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। हाँ, तीन में मूव नहीं होता, तीन में फिक्स हो जाता है। सो विच अलाउ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, ये तुम्हें देखना है। इस वाले में पांच है ना, तो ये मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ, इसको ऐसे पुश कर सकता हूँ, ये भी अप एंड डाउन हो सकता है, ये वाला पार्ट मूव नहीं हुआ सिर्फ, है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। लेकिन दिस, हाँ, इस ये वाला मूव हो जाएगा, ये वाला मूव हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो मतलब ये मूवमेंट, ये वाला ये पॉसिबल है, ये मूवेबल है। इस वाले में तो पता लग ही रहा है, सारे पैरेललोग्राम है, पेंटागन है, पूरा डेफिनेटली 100% मूवेबल है ये इसका सारा मूवमेंट पॉसिबल है। सी वाला अटकेगा, और सी वाले में अगर ये नहीं होता ना, ये वाला, तो ये मूव हो सकता था, दिस कुड हैव बीन मूव्ड, बट दिस इज द प्रॉब्लम, इसके आने की वजह से पूरा ये फिक्स्ड हो गया, ये रिजिड हो गया, दिस इज रिजिड बिकॉज ऑफ द शेडेड लिंक। डी इज डेफिनेटली मूवेबल। ये ऐसे हो सकता है मूव, ये ऐसे हो सकता है मूव, ये ऐसे हो सकता है मूव। क्या आंसर है इसका, एमएसक्यू है क्या ये? हम्म। तो आंसर इज एबीडी। इसको किसको, ये रोकेगा, इसको होल्ड करेगा। ये तो उसने होल्ड, ये तो फिक्स्ड होगा ना, ये वाला एंगल इट कांट मूव, एंड सिमिलरली दिस कांट मूव। हाँ, अगर ये नहीं होता देन इट वाज मूवेबल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कौन सा है। नहीं, ट्रायंगल में मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ये भी मैकेनिज्म वाला एक ट्राई कर लो। जस्ट हैव a look at this. Different views of the cross section of a fish are been given. The points P and Q are connected in such a way that the fish tail waves. ये इसी का पार्ट है, ये यहाँ पे आएगा। दिस ग्रीन है, दिस ग्रीन सेम ओनली, मतलब यहाँ पे असेंबली है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं वो लोग। मतलब द टेल शुड वेव, ये ऐसे मूव करे। ये मतलब इसका मूवमेंट फिक्स है, उसी उसी वो रेल बना दिया, मतलब एक गाइड गाइड रेल बना दिया वो, है ना। उस गाइड रेल के अंदर ही मूव करेगा, जैसे यहाँ पे गाइड रेल नहीं है, तो इसका मूवमेंट ऐसे भी पॉसिबल है। तो इस ये इसी गाइड रेल के अंदर मूव करेगा, मतलब ये वाला वायर ऐसे नहीं बाहर निकल सकता, ना ही ऐसे निकल सकता है बाहर। एक बार तुम देख लो, सारे कंपोनेंट भी देखो, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें, छोटे छोटे, और इसकी पिक्चर भी इतनी क्लियर नहीं है कि कैसे मूव करना है। पी हमें दे रखा है, क्यू दे रखा है। ये वाला पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है, रेड पी से कनेक्टेड है ना, रेड पॉइंट्स पी एंड क्यू आर कनेक्टेड इन सच ए वे, द ग्रे कलर गियर एंड द ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट रोड। पी, ये असेंबली यहाँ पे कनेक्टेड होगी ना, पी, दिस शुड गो ओवर हियर, मतलब ये पॉइंट क्यू है, दिस इज द क्यू,
एंड दिस पॉइंट पी इज ओवर हियर, ये होना चाहिए, दिस इज पी। लेकिन पता है क्या है, नहीं, अगर दिस, सी इफ दिस काइंड ऑफ मोशन इज पॉसिबल, इज इट मूविंग दिस वे और नॉट, तुम्हें ये देखना है। ये 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 सेंटर में कनेक्टेड है ना, ये सेंटर में कनेक्टेड, ये सेंटर में कनेक्ट, मतलब ये आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा, ये सेंटर में है ना बिल्कुल। हाँ, ये तो राउंड राउंड घूम रहा है, तो इसके राउंड राउंड घूमने से दिस लेंथ हैज टू गो अप लाइक दिस, अगर ये मूवमेंट पॉस, भाई असेंबली तो ये है ना, यहाँ पे ये रॉड लगी हुई है, ये रॉड यहाँ लगी हुई है, दिस रॉड इज देयर, ये जो रॉड यहाँ से जा रही है वो ये लग इस तरह से लगी हुई है। तो जब ये रॉड ऐसे मूवमेंट करेगी तब टेल ऐसे मूव करेगा। ये रेड पॉइंट पी है, और ये वाली असेंबली क्यू है, ये पी है, दिस इज क्यू, दिस इज द सेंटर ना। तो ये तो घूमता रहेगा सेंटर पे, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ है ना रॉड, उसने शो नहीं किया, बट ये असेंबली इस तरह से कनेक्टेड है, ये असेंबली तो ये वाली है, और ये जो रॉड है वो यहाँ पे पी से कनेक्टेड है। तो जब ये रॉड का टू एंड फ्रो मोशन होगा, अब तुम्हें ये देखना है कि रॉड का टू एंड फ्रो मोशन किस में हो रहा है। जिसमें रॉड का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो रॉड के साथ ये फिन कनेक्टेड है, तो जब रॉड टू एंड फ्रो करेगी तो वो फिन ऐसे मूव करेगा, ये। तो किस में तुम्हें रॉड का टू एंड फ्रो मोशन नजर आ रहा है, बी और सी में? अब मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि जब ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, जब ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो ये रॉड खींचेगी। जब ये पार्ट ऐसे आ जाएगा, ग्रीन पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे आगे पुल होगा, होगा नहीं होगा? नहीं, गलत क्यों, हमें तो टू एंड फ्रो मोशन चाहिए ना। इसमें कहाँ हो रहा है, इसमें तो सेंटर से कनेक्टेड है ये रॉड, सेंटर पॉइंट से। रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं, सेंटर से कनेक्टेड है, तो अगर सेंटर से अगर कोई कनेक्टेड चीज रोटेट होती रहेगी, वो वहीं का वहीं, रॉड वहीं का वहीं रहेगा। रॉड को आगे पीछे जाना है ना, खींचेगा नहीं ना वो। तो जब ये वाला असेंबली यहाँ आएगा, देन दिस विल बी पुल डाउन, और जब ये यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे, तो ये वापस आगे चला जाएगा। तो टू एंड फ्रो मोशन पॉसिबल है बी में, बी में टू एंड फ्रो मोशन पॉसिबल होगा। सी में, सी में कैसे होगा? वही सी तो सेम एज ए हो गया, बिल्कुल सेंटर में कनेक्टेड है। नहीं 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 नहीं, शी इज राइट, शी इज राइट, उसमें अटैच्ड है वो। हाँ, फिर तो बेवकूफ बन, हाँ वो मेकिंग ए फूल ऑफ अस, नहीं, मतलब या तो उसमें गाइड करता वो, उसमें अंदर गाइड होता वो। वायर की शेप से फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, वो तो इसमें अटैच्ड है ना, ये जो है दिस इज अटैच्ड विद द, ये वाला पार्ट, ये स्लॉट है ना, ये वाला स्लॉट की बात कर रही हो ना तुम, ये इसमें अटकेगा ना। बट ये तो रॉड को तो सेंटर में लगा दिया ना लोगों ने। हाँ, तब वो आगे पीछे हो जाता, उस वाले में देखो, डी में। हाँ, वो विजुअली तुम्हें लग रहा है कॉर्नर में है, लेकिन जो उसका रेड वाला सेंटर का तुम देखोगी, देखो रेड का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली सेंटर है, ये वाला डिस्क का भी सेंटर है, डिस्क का सेंटर इज द सेम एज द रेड, रेड पॉइंट। वो विजुअली हमें ऐसा शो कराएगी ताकि तुम्हें लगे कि वो अलग है। डी, हाँ डी गलत हो गया, बी लग रहा है मुझे, एक बार तुम सी और देख लो, बिकॉज सी में, सी, ये जो वायर इसमें आ रहा है ना, हाँ मैं समझ गया।
नहीं नहीं, मैं समझ गया। ये जो है ना, ये यहाँ पे इसमें वो आ रहा है, प्रोड्यूर हो रहा है वो। तो जब व्हील रोटेट करेगा, जो प्रोड्यूड यहाँ पे आएगा, तो रॉड को भी खींचेगा ना वो। तो आई थिंक सी एंड बी। हाँ, वो उसको खींचेगा वापस लाएगा, खींचेगा वापस लाएगा। हाँ, तो आई थिंक बी एंड सी शुड बी द आंसर। देखो। तो पीछे तो ए भी है। ए बी है। हाँ। मतलब हमारा 20 आंसर ए बी सी भी है। ए, तो सी देखो वापस, ए देखो वापस से फिर। ए को वापस देखो। मैंने इस देखो, इसको लुक एट दिस वन। मैं इसको देखो जरा, इससे आइडिया लग रहा है। जो रिंग है ना, क्या हो गया? रिंग की वजह से आइडिया लगेगा तुम्हें। रिंग रिंग का क्या होगा मोशन है? जब ये ग्रीन इधर आ जाएगा, मान लो ये ग्रीन ऐसे आ जाता है ना? तो रिंग रिंग खिंच गई ना। लोग दिस हंसा, ये इसको नोटिस नहीं किया हम लोगों ने, ये रिंग उसको किसमें? डी में तो डी में तो ये लिंकेज दे रखा है ना इसने। तो उसका हाँ, ये मूव करता रहेगा, वो पी वहीं रहेगा, पी। ये है। देखो, फोटोग्राफी की। अच्छा, नहीं वो मैं बाद में करूंगा। ये देख लो। ये तो मैम भी करा देंगे, ऐसा विजुअल वाला है ना ये तो। ये देखो, सब लोग यूज करते हैं ये। इतने सारे मच्छर होते हैं आजकल। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से एक बार, फिर आंसर करते हैं इसको।
सबसे पहले तुम लॉजिक समझो क्या हो रहा है इसमें। द एंटायर लिक्विड हैज टू बी यूज्ड, मतलब कई बार होता है ना कुछ लिक्विड बच जाता है, वो नहीं होना चाहिए टिल द एंड। हाँ, आ गया। दूसरी बात, सॉकेट जो है इसका, सॉकेट नॉर्मली क्या होता है, वॉल पे सॉकेट ऐसे लगा होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लगा होता है। तो अगर सॉकेट वर्टिकली लगा हुआ है तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, फिर तो तुम सीधा सीधा लगा दो। लेकिन यहाँ पे सॉकेट की जो पोजीशन है वो ऐसी है, ऐसी नहीं है, वॉल पे ही ऐसा नहीं लग रहा सॉकेट। वॉल पे सॉकेट भी एंगल पे, 25 डिग्री एंगल पे, तो तुम्हारा पिन ऐसे लगेगा, ऐसे लग रहा है बॉटल। द मशीन विल बी लाइक दिस, ऐसे लगेगी, 25 डिग्री एंगल विद वर्टिकल। तो सबसे पहले क्या रूल आउट हो रहा है, ये तो रूल आउट हो गया। अगर ये वर्टिकल होता, अगर ये मशीन वर्टिकल, तुम्हारी वॉल वर्टिकल होती, पिन वर्टिकल होता, तो पूरा पूरा लिक्विड यूज होता। अगर मैं इसको 25 डिग्री से टर्न कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, ये बॉटल ऐसे यहाँ पे आ जाएगी और कुछ लिक्विड यहाँ पे बच जाएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, सम लिक्विड विल लेफ्ट। तो दिस इज कंप्लीटली रूल्ड आउट। ए ऑप्शन के नॉट बी द आंसर। डी वाले में क्या हो रहा है, डी वाले में पिन तुम्हारी ऐसी लगी हुई है ना, और सॉकेट यहाँ पे है, ये तो हो रहा है। व्हाट अबाउट बी? नहीं नहीं नहीं, पहले बी देखो, बी, बी देखो क्या हो रहा है। बी में वो 30 डिग्री एंगल पे है और तुम उसको 15 डिग्री 25 पे इसको टिल्ट कर रहे हो। जब तुम इसको ऐसा टेढ़ा करके लगाओगे तो फिर क्या होगा, लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, 5 डिग्री का डिफरेंस है। दैट वे सी शुड ऑल्सो वर्क। इफ बी वर्क्स एंड सी ऑल्सो वर्क्स। हम्म, सी में क्या डिफरेंस आ रहा है, व्हाट इज? हाँ, तो आई डोंट थिंक उससे मच। तो इसमें भी तो लिक्विड ऐसे ही आएगा। तो दैट वे बी सी डी होना चाहिए था। एक बार देख लो वापस से, सोचो। हाँ, क्या आंसर है? बी सी डी इज आंसर। अच्छा था ना क्वेश्चन ये। तो ये जो तुम, बोरिंग नहीं था, जो भी तुम डे टू डे लाइफ में देखते हो ना चीज, उनको ऑब्जर्व करो कीनली। हाँ, है। नहीं, क्यों नहीं, अगर सॉकेट टेढ़ा तो तुम्हें टेढ़ा करना पड़ेगा। नहीं, बिना खुले भी काम चल जाता है। जैसे नॉर्मल सिपर होता है, ठीक है, उसमें यही तो होता है कि स्ट्रॉ अगर उसका ये है, पाइप यहाँ तक है, तो इतना तुम्हारा लिक्विड बच ही जाएगा, तुम उसको फिर खींचते रहो, हवा आएगी ऊपर, है ना। तो उसको नीचे तक इसलिए रखते हैं। और कई बार क्या होता है, सिर्फ एक कॉर्नर में, अगर अगर ये मूवेबल है तो उसको कोने में ले जाते हैं, फिर उसको सक कर देते हैं, फिर कोने में लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। तो दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे बढ़ेंगे। फिर एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं तुम लोगों के? एग्जाम हमारा तो मेरा थर्ड से 15th? 17, थर्ड से 17 तक है।
हाँ तो फिर वो क्लास टाइम बढ़ा दूंगा मैं फिर उसके बाद, ठीक है। um, हाँ जो ऑल्टरनेट मेरी क्लास होती है ना वो 2 घंटे कर देंगे, 1.5 घंटे तो कर ही देंगे। आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है, ठीक है। क्यों? ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम।